Dear students, I am Shishpal Chauhan and today I am going to explain multiple choice questions on the lesson, the third level, and this lesson is meant for the students of 12th class. Let's begin now. MCQs on the third level. Question 1. How many levels did Grand Central Station in reality have? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कितने लेवल्स थे एक्चुअल में, रियलिटी में, वास्तविकता में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कितने लेवल्स थे? ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज 5. आप जानते हैं कि these were 2. Only 2 levels were there in reality. Second question is, how many levels did Charlie claim to his friend that the Grand Central Station has? Grand Central Station के कितने लेवल चार्ली क्लेम करता है अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड सैम को कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के इतने लेवल्स हैं? A option says 1, B says 2, C 3 and 4 and D 4. तो कितने लेवल्स थे जो चार्ली अपने फ्रेंड को बताता है? 1 बताता है या 2 बताता है या 3 या 4? आप जानते हैं कि he says 3. There were 3 levels according to Charlie of the Grand Central Station. Let's proceed to question number 3. Who is the writer of the third level? Third level का राइटर कौन है? The third level, the will be there. The writer of the third level, John Updike, Kalki, Jack Finney और Paul Esberg. आप जानते हैं कि Jack Finney is the correct option for the answer. What was Charlie's hobby? This is question number 4. Fourth question में option 1, 2, 3, 4. First option is stamp collecting, singing, dancing and writing. चार्ली की हॉबी बतानी है आपको कि स्टैम्प कलेक्टिंग थी या सिंगिंग थी या डांसिंग थी या राइटिंग थी. एंड यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल दैट Charlie's hobby was stamp collecting. This is the right option, 1. What did Charlie's hobby provide him? चार्ली की हॉबी उसे क्या प्रदान करती थी, क्या देती थी? मनी देती थी, फेम देती थी, escape देती थी या फूड ग्रेन्स देती थी? मनी का मतलब आप जानते हैं कि पैसा, फेम, प्रसिद्धि होती है. escape रियलिटी से जब बच के निकलता है आदमी, कहीं और शरण लेता है, that is called escape. और फूड ग्रेन्स आप जानते हैं अनाज होता है, इसका आटा वगैरह बनता है. इन एक्चुअलिटी स्टैम्प कलेक्टिंग चार्ली को escape देती थी from the bitter realities of the world. Sixth question is, fill in the blank in the line by picking up the correct option given below. लाइन दी हुई है, उसका आपको स्थान में, इस खाली जगह पे आपको वर्ड भरना है इन 4 ऑप्शन में से. ये पहला ऑप्शन ये नहीं है, so this is 1 option first and this is 2 and this is 3 and this is 4. This is not 5. So President Roosevelt also did farming, did singing, did stamp collecting, या did teaching. And you must know he also did stamp collecting. The third option is correct. Eighth question is, what was the narrator's wife's name? नरेटर कौन है यहाँ पे? आप जानते हैं चार्ली. चार्ली की पत्नी का नाम आपको बताना है, वाइफ का नाम बताना है. जरीना, लुइसा, लूसी, नैन्सी. And you must know the name of Charlie's wife was Louisa, right? What type of trains leave from the second level? Second level से according to Charlie किस तरह की trains जाती थी? Metro trains, suburban trains, passenger trains or superfast trains? According to Charlie, suburban trains left from second level. Question number 10. Once the narrator got into a tunnel and came out in an office building 46th, out in the lobby of the which hotel? The name of hotels are given below and you are to select one hotel that will complete this line. In the lobby of the
डैश होटल, राइट। तो 4 होटल्स के नाम दिए हैं, इनमें से एक होटल करेक्ट ऑप्शन है, आपको चुनना है। ये चार्ली के अनुसार है कि नरेटर जो चार्ली हैं वो बता रहे हैं कि एक बार वो टनल में घुस गया और निकला कहाँ जाके, 46 बिल्डिंग में, ये लॉबी में निकले, किसी होटल के लॉबी में। रूजवेल्ट होटल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11th, व्हाट डज द, इस लेसन में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बातें चलती हैं और नरेटर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में क्या कहता है। इट वॉज ग्रोइंग लाइक मशरूम, ये मशरूम की तरह उग रहा था। ग्रोइंग लाइक वीट, वीट की तरह उग रहा था। या कांग्रेस ग्रास की तरह उग रहा था। या ग्रोइंग लाइक ए ट्री, या वृक्ष की तरह उग रहा था। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, इट वॉज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। 12th question is, the narrator Charlie wanted 2 tickets for, नरेटर चार्ली 2 टिकट चाहिए थे उसे, कहाँ के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए, या बोस्टन के लिए, या रोम के लिए। एक्चुअली ही नीडेड 2 tickets for Galesburg, Illinois, right? Question 13 is, how much money did Charlie draw out of the bank to buy old style currency? ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदने के लिए चार्ली ने बैंक से कितने डॉलर्स, कितना मनी निकलवाया? $300, $200, $400 या $800? Actually, he withdrew $300. So, first option is the right choice. Question 14. How many old style currency bills did the narrator get for $300? ओल्ड करेंसी नोट्स लेने के लिए, खरीदने के लिए नरेटर ने, चार्ली ने $300 निकलवाए थे। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना कि $300 के बदले ओल्ड स्टाइल बिल्स उसे कितने मिले। $300 के बदले $300 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स मिले, या $200 मिले, 400 या 800? एक्चुअली ही रिसीव्ड $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स in place of $300. Question 15. What was the cost of 1 dozen eggs in 1894? 1894 में 1 दर्जन अंडों की कीमत क्या थी? 13 cents, 12 cents, 14 cents या 23 cents? And you must know it was 13 cents. 13 cents कीमत थी 1 दर्जन एग्स की। What is the name of Charlie's friend? चार्ली के दोस्त का नाम क्या था? सैम गेनर, सैम वेनर, सैम फिस्टा, सैम रिश्ता? It was Sam Weiner, right? Question number 17. Where did Charlie get schooling? चार्ली ने स्कूलिंग कहाँ से ली? गेल्सबर्ग, बोस्टन, न्यूयॉर्क या जर्मनी? Actually, he went to Galesburg. 18th question. To whom was the first day cover addressed? फर्स्ट डे कवर क्या होती है? जब कोई स्टैंप रिलीज होती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग जो स्टैंप कलेक्टिंग करते हैं वो स्टैंप को खरीदते हैं, किसी एनवलप पे पेस्ट करते हैं और फिर अपना ही एड्रेस उस पे लिखते हैं, उसके अंदर एनवलप के एक खाली पेपर डाल देते हैं और वो लेटर उनको उनके एड्रेस पे मिल जाता है और बड़े खुश होते हैं उस लेटर को, जिसमें खाली पेज है, ब्लैंक पेज होता है, उसको देख देख के खुश होते हैं। स्टैंप उस पे लग जाती है, पोस्ट ऑफिस की डेट भी लग जाती है। तो इस तरह से वो फर्स्ट डे कवर होता है। चार्ली को भी फर्स्ट डे कवर मिला और वो किसके एड्रेस पे था? चार्ली के फ्रेंड के, या चार्लीज ग्रैंडफादर, या चार्लीज वाइफ, या चार्लीज ग्रैंड मदर? ये सेकंड ऑप्शन है। चार्लीज वाइफ थर्ड, चार्लीज ग्रैंडफादर फोर्थ ऑप्शन। सो इट वाज एड्रेस टू चार्लीज ग्रैंडफादर। अचानक ही चार्ली ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स को ढूंढ रहा था, तब उसको एक लेटर मिला, एनवलप मिला, जिसपे चार्ली के ग्रैंडफादर का एड्रेस दिया हुआ था और वो फर्स्ट डे कवर था। What date was marked on the first day cover addressed to Charlie's grandfather? जो लेटर चार्ली के ग्रैंडफादर को एड्रेस्ड था, उस पर डेट क्या लिखी हुई थी? जुलाई 18, जुलाई 19, जुलाई 20,
July 21, it was July 1894. What was the price of the stamp affixed on the first day cover sent to Charlie's grandfather? चार्ली के ग्रैंडफादर को जो फर्स्ट डे कवर एड्रेस्ड किया गया था, तो उस पे जो स्टैंप लगी हुई थी तो उसकी कीमत क्या थी? 6 सेंट्स, 4 सेंट्स, 5 सेंट्स या 7 सेंट्स? उस पे 6 सेंट्स की कीमत थी। Question 21st is what name was signed on the paper that was taken out from the envelope by Charlie? चार्ली ने जो एनवलप से पेपर निकाला, फर्स्ट डे कवर वाला जो लेटर था, एनवलप था, उसमें नाम क्या लिखा हुआ था नीचे? सिग्नेचर किसके थे? सैम के, लुइसा के, जॉन के या फ्रेडरिक के? तो उस पे सिग्नेचर सैम के थे और ये बात उसको बहुत ही हैरान कर रही थी। क्वेश्चन 22nd, व्हाट इज पुट इनसाइड ए फर्स्ट डे कवर एनवलप? फर्स्ट डे कवर एनवलप के अंदर क्या रखा जाता है? करेंसी नोट रखते हैं, ब्लैंक चेक रखते हैं, ब्लैंक पेपर रखते हैं, थ्रेड रखते हैं, कोई धागा रखते हैं? आंसर इज दे पुट अ ब्लैंक पेपर। एक खाली पेपर होता है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा होता। क्वेश्चन नंबर 23rd, whose picture was there on the stamp affixed on the first day cover that Charlie found? चार्ली को जो फर्स्ट डे कवर मिला उस पे एक टिकट लगी हुई थी, उस पे किसकी तस्वीर थी टिकट पे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की थी, प्रेसिडेंट ओबामा की थी, प्रेसिडेंट लिंकन की थी या प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी? And you must know it was the picture of President Garfield. Question 24th. What amount of money did Sam bring from the stamp and coins store? स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर से सैम कुछ पैसा लाया था, तो कितना था वो? $800 था, $900, $700 या $600? And you must know it was $800 of old currency. And 25th question is the paper that was found from inside the first day cover was not blank. जो चार्ली को फर्स्ट डे कवर एनवलप मिला तो उसके अंदर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। आमतौर पे ब्लैंक पेपर होते हैं। इट हैड ए नोट, उसके अंदर एक कुछ लिखा हुआ था, नोट था। नोट का मतलब करेंसी नहीं था, एक कुछ लिखा हुआ था पेपर पे। और whom was it addressed? वो जो नोट था किसको एड्रेस किया गया था? ग्रैंडफादर को, चार्ली को या सैम को या लुइसा को? एक्चुअली इट वाज एड्रेस्ड टू चार्ली। चार्ली को एड्रेस किया गया था। क्वेश्चन 26th, who wrote the letter that was lying there inside the envelope opened by Charlie? फर्स्ट डे कवर वाला जो एनवलप था, चार्ली ने खोला तो उसके अंदर एक पेपर था जिसपे कुछ नोटिंग थी, कुछ लिखा हुआ था, कुछ लाइनें लिखी हुई थी। तो वो किसने लिखा था वो पत्र? नीचे सिग्नेचर किसके थे? तो वो सैम के थे। बाय मिस्टेक ये 2 बार सैम आ गए, तो सैम ही फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर दिस वीडियो लेक्चर ऑन MCQs of the third level ends up here. I shall come up with another lesson with MCQs. Till then, have a nice day. And do not forget to subscribe to my channel. Thank you very much. And keep watching, liking, and sharing my videos with your friends. All the best. Thank you.